acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. So, I think, I mean, let's be very, very clear on this. You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. So, you know, let's be clear what this is about. On your question, you know, is this a breakthrough? Look, he came here as a member, a foreign minister of an SCO member state. That is part of multilateral diplomacy. Please do not see it as anything more than that. It was not meant as anything more than that. It was not treated as anything more than that. And I think nothing that from what he said or what I heard he said deserves for this to be treated more than that. The China question. Look, my understanding of what the Chinese said, I think they used the word stable, if I'm not mistaken. I don't think that's the issue. I think the issue is that there is an abnormal position in the boundary areas, border areas, along the boundary. And we had a very frank discussion about it. It's not the first discussion. I had spoken to Foreign Minister Chingang on the sidelines of the G20 as well. We have to take the disengagement process forward. And I have made it very clear, frankly, publicly as well, and you know, what I say within the room is not different from what I say outside, which is that India-China relations are not normal and cannot be normal if the peace and tranquility in the border areas is disturbed. You know, I've been very, very clear about it. I've been very consistent about it, and I have not changed my position at this meeting either. Thank you, sir. Listen, before, in the interest of efficiency, please do not repeat similar questions or try to come back to it. I think, so I'll take fresh questions on that. Maha? Yeah. Sir, Maha Siddiqui from NDTV. Sir, how does India view being part of an organization which is now largely being viewed as an anti-West grouping? Yeah, Neeraj? सर, नीरज हूं, न्यूज 18 इंडिया से। आपने कहा कि G20 से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा श्रीनगर में जो पर्यटन के मसले पर बैठक हो रही है, वक्त पर ऐसा जवाब देंगे कि उनको याद रहेगा। इस स्टेटमेंट को भारत कैसे देखता है? देखिए, स्पेसिफिक ऐसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, जवाब दे चुके हैं। मैं सभी जवाब दूंगा। यस सर, प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर। थैंक यू। तो जयशंकर प्रेस से बात कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। राजौरी के खंडी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। केसरी हिल के इलाके में किया जा रहा है ऑपरेशन तेज। तरंतर इलाके में मुहासरा और तलाशी के दौरान ये इनकाउंटर शुरू हुआ और इस इनकाउंटर में फौज के 5 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह समेत दीगर आला अफसरान भी इनकाउंटर साइट पर मौजूद रहे। और फोन लाइन पर इस वक्त अपडेट के लिए हमारे नुमाइंदे शक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या अपडेट आप दे रहे हैं? शक्ति, हेलो शक्ति, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो मैं आपको बता दें, राजौरी का एक खंडी इलाका है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। फिलहाल गोलीबारी फायरिंग वहां पर बंद है और जो आतंकवादी वहां छुपे हैं वो इसी इलाके में मौजूद है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरा मुहासरा कर रखा है। कुछ मकान वहां पर मौजूद है, उन मकानों पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं
और रात का वक्त हो गया अंधेरा, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना ऑपरेशन वहां पर अभी फिलहाल रोका हुआ है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मिलिटेंट्स फरार हो गए हैं, लेकिन मुहासरे में है ऐसा लगता है फोर्सेस को, और फोर्सेस ने अपनी नजरें वहां पर जमा रखी हैं ताकि मिलिटेंट इस इलाके से बाहर न जा सकें। तो राजौरी का एक कंडी इलाका है केसर हिल, जहां पर यह ऑपरेशन मुहासरा और तलाशी के दौरान एनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसमें फौज के 5 जवान शहीद हो गए और फोर्सेस की तादाद को काफी बढ़ाया गया था ताकि वक्त रहते उन मिलिटेंट्स को ढेर किया जाए। और जिस इलाके में वो मौजूद हैं फोर्सेस वहां तक पहुंची जरूर हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा शुरू हुआ उसका फायदा उठाकर मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हुए, लेकिन इलाके से बाहर नहीं गए, फोर्सेस का अपना कहना है। और फोर्सेस अपने इस ऑपरेशन को आगे जारी रखेगी। रात का वक्त है, फायरिंग का तबादला फिलहाल जो है रुका हुआ है और इस इलाके को मुहासरे में लेते हुए फोर्सेस ने अपनी निगाहें जमाए रखी है ताकि मिलिटेंट इस इलाके से बाहर न जा सके। हालांकि घना जंगल है और कुछ मकान भी वहां मौजूद है। फोर्सेस को यह खदशा है कि मिलिटेंट उन घरों में घुसकर घर वालों को धमका सकते हैं, बंदूक की नोक पर उन्हें निशाने पर लेकर बचने की वो कोशिश कर सकते हैं, किसी को कोई नुकसान न पहुंचे, इलाके के अवाम को कोई नुकसान न पहुंचे। फोर्सेस को अपनी जिम्मेदारी है उसको देखते हुए फोर्सेस इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिए हुए हैं और अंधेरे का फायदा उठाकर जैसे मिलिटेंट फरार हुए, लेकिन फोर्सेस ने इस इलाके को अभी नहीं छोड़ा है। फोर्सेस अपनी कार्रवाई को जारी रखे हुए हैं, पूरे इलाके को मुहासरे में रखते हुए नजर रखी हुई है फोर्सेस ने, ताकि मिलिटेंट उस इलाके से फरार न हो पाए। तो लगातार हम आपको इसका अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर हम अपने नुमाइंदे को जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त अंधेरा हो चुका है और फोर्सेस ने अपनी कार्रवाई को रोका हुआ है, लेकिन फोर्सेस उस इलाके में अभी भी मौजूद हैं ताकि मिलिटेंट उस इलाके से फरार न हो पाए। घना जंगल है, फोर्सेस के लिए काफी मुश्किल है रात के वक्त तलाश करना, और वहां मौजूद जो मकान हैं उन इलाकों में रहने वाले मकीनों की हिफाजत भी फोर्सेस की जिम्मेदारी है, जिसकी बिना पर फोर्सेस ने फिलहाल फायरिंग को रोका हुआ है ताकि मिलिटेंट किसी को कोई नुकसान मजीद न पहुंचाए। काफी नुकसान फौज को पहुंच चुका है, 5 जवान शहीद हुए हैं। आला अहदेदार भी मौके वारदात पर मौजूद रहे और फोन पर एक बार फिर हम जोड़ेंगे हमारे नुमाइंदे शक्ति। इस वक्त क्या अपडेट आप दे रहे हैं, क्या सिचुएशन है इनकाउंटर की जगह पर? तो अंधेरा जो है वो पड़ने वाला है और इस पूरे इलाके में जिस तरह से सुबह से जो सर्च है वो भी बराबर चल रही है और इस वक्त जो है घरों में तलाशी जो है वो की जा रही है। जो नजदीक के घर हैं जहाँ पर ये इनकाउंटर हुआ है उस इनकाउंटर के नजदीक के जितने भी घर हैं तमाम घरों की तलाशी जो है वो की जा रही है। अभी अभी जो डीआईजी राजौरी पुंछ पुलिस रेंज है वो यहाँ से निकल चुके हैं, एडीजीपी और डीजीपी इससे पहले निकले हैं और हालांकि अदर ऑफिसर जो हैं, बाकी ऑफिसर जो हैं पुलिस के, सीआरपीएफ के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त पूरे इलाके में अंधेरे की वजह से अब सर्च में है थोड़ी सी कमी जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन घरों की तलाशी जो है इस वक्त पूरे एरिया में की जा रही है। और जो लिंक रोड है उनकी गाड़ियों की आमद-रफ्त जो है वो इस लिंक रोड पर बंद की है वो, और लोगों को ये सलाह दी है कि वो घरों से बाहर रात को भी ना निकलें, घरों के अंदर ही रहें। जी शक्ति, जिस तरह से घरों की तलाशी हो रही है इस इलाके को क्या फोर्सेस ने मुहासरे में अभी भी रखा हुआ है, क्योंकि रात का वक्त है, अंधेरा है, इसका फायदा उठाकर वो फरार ना हो? बिल्कुल, ये जो वाकया यहाँ पर हुआ है इस वाकये के नजदीक जो घर हैं कुछ ही घर हैं इस एक एरिया में, बाकी जंगली इलाका है, पूरा फॉरेस्ट का एरिया है और पहाड़ी एरिया है, तो कहीं ना कहीं रात को वो इन घरों के अंदर दाखिल ना हो, कहीं नाले में वो हो सकते हैं या कहीं आगे पीछे। हालांकि पूरे एरिया की तलाशी तो ली जा रही है लेकिन अंधेरे की वजह से थोड़ी सी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन घरों की तलाशी इसलिए ली जा रही है कहीं ना कहीं वो रात को अगर कहीं घरों में ना आ जाएं और घरों के जितने भी लोग हैं जो घरों के अंदर हैं उनको ये सलाह दी जा रही है कि किसी भी तरह की कोई नकलो हरकत वो देखें, फौरी तौर पर उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस को दें और पुलिस जो है फौरी तरह से इस एरिया में अलर्ट है। पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और फौज जो है वो इस पूरे एरिया में अलर्ट है और इस पूरे एरिया में अभी भी जो है वो कार्डन लगाया हुआ है। जी शक्ति, जिस ये इलाका है जहां पर जो उससे सटी सड़क है, रोड है, उस पर जो आम लोगों की आवाजाही है उसको भी क्या बंद किया गया अभी?
जी बिल्कुल, आमो दराफत जो है वो बंद किया गया है क्योंकि अंधेरा पड़ रहा है और लोगों को ये सलाह दी गई कि घरों के अंदर रहें। हालांकि जब सुबह का जो वाकया हुआ तो उस वाकये के बाद भी दहशत का माहौल था, लोग काफी डरे हुए थे क्योंकि फायरिंग की आवाज लोगों ने सुनी। जो नजदीक के घर थे वो काफी परेशान थे जब हमारी बात हुई, लेकिन अब भी उनको ये सलाह दी गई है कि वो घरों के अंदर रहें और बाहर ना निकलें। गाड़ियों की आमोदराफत तो पहले से ही यहाँ पर बंद थी, अब भी जो है वो किसी भी तरह की गाड़ियों की आमोदराफत इस लिंक रोड में देखने को नहीं मिल रही है। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जो है वो तैनात हैं और जो है एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो मंगवाई गई है, और रात को कहीं आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ से फरार न हो, इसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी तरह से अलर्ट है। जी शक्ति, वहां पर एक बहुत ही कम तादाद में मकान है और मकानों के बीच भी काफी बड़ा फासला है, तो ऐसे में फोर्सेस के लिए कितना आसान होगा, क्योंकि बड़ी तादाद में ज्यादा मकान तो नहीं है, लेकिन मकानों की तलाशी कब तक आज शाम में पूरी हो जाएगी? तरह से जो मकान है वो कुछ ही मकान है इस एरिया में, जिस एरिया में इनकाउंटर हुआ। हालांकि इसके पीछे की पहाड़ी है, उसके पीछे जो है वो घर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नजदीक के जो घर हैं उन घरों की तलाशी जो है वो शाम तक कंप्लीट हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि ये कुछ ही घर हैं। और इस पीछे के इलाके की अगर हम बात करें तो इसके पीछे जो है वो 2 पहाड़ियां आती हैं और पहाड़ियों के पीछे जो है वो जंगल है, घना जंगल, और जंगल के बाद जो है वो फिर बर्फबारी वाला इलाका आ जाता है, जहाँ हाई रिचेस की मैं बात करूं तो वहां पर बर्फ जो है वो पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज को ये भी लग रहा है कि बर्फ की तरफ वो जा नहीं सकते, वो जंगल का फायदा उठा सकते हैं या फिर इन घरों में वो पनाह ले सकते हैं, इसलिए इस एरिया को पूरी तरह से छाना जा रहा है। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है और घरों के अंदर जो है पूरी तरह से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति, इस पूरी जानकारी के लिए आप नजर बना रखें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो ये थे शक्ति मरडबान, तफसीलात दे रहे थे कि घरों की तलाशी फिलहाल आसपास के इलाकों की ली जा रही है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको देते, वज़ीर खारजा एस जयशंकर SCO मीटिंग के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी हाँ, एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर बोला हमला। एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर हमला बोला है, पाकिस्तान दहशतगर्दी की है इंडस्ट्री। लगातार एस जयशंकर पाकिस्तान पर यह हमला बोलते रहे हैं कि दहशतगर्दी का अड्डा, दहशतगर्दी की इंडस्ट्री है पाकिस्तान। वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर यह हमला बोला है। SCO मीटिंग के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद लगातार चल रहा है, इसके पेश नजर पाकिस्तान आतंकवाद की इंडस्ट्री है। बड़ा हमला एस जयशंकर का पाकिस्तान पर। The foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari, was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. So let me come to the specifics. On the China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor, I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So, to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. Is depleting even faster than its forex reserves. So, you know. यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।
कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर में सरकारी इंतजामिया दहशतगर्दों के हमदर्दों और एलओसी के पार बैठे उनके हैंडलर्स को सख्त पैगाम दे रही है। अपनी नौयत के पहले वाक़े में टीचर से टेररिस्ट बनने वाले एक शख्स का मकान जमीन बोझ कर दिया गया। उससे दहशतगर्दी के तई जीरो टॉलरेंस वाली हुकूमत की पॉलिसी और सरकारी इंतजामिया का अज़्म मुसम्मम नुमाया हुआ है। बार काउंसिल तहसील के भावर गांव में खसरा नंबर 602/457/1 जमीन पर पुलिस ने कार्रवाई अंजाम दी। इस दौरान मकामी लोग और आजाद गवाहान मौजूद रहे। मुजरिम ने सरकारी जमीन पर कब्जा जमा कर उस पर अपना ढांचा बना रखा था। पुलिस ने औराफ शेख के धमाकों के मुलविस होने के शवाहिद साबित कर दिए हैं, जिसके बाद हुकूमत ने मुजरिम को टीचर की मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। मुजरिम कटरा, नरवाल और कदमल में हुए धमाकों में मुलविस था। कटरा पुलिस स्टेशन में यूएपीए के तहत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। जम्मू में भी असलहा से मुतल्लिक सख्त कानून के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज है। कटरा के कदमल में औराफ शेख बस में हुए जिस धमाके में मुलविस था उसमें 5 लोग हलाक हो गए थे और 28 जख्मी हुए थे। पुलिस ने इन केसों में कामयाबी से साजिश का पर्दाफाश किया और पाकिस्तान नवाज दहशतगर्दों की सरकोबी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। किश्तवाड़ में आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले फौज के टेक्नीशियन को खराज अक़ीदत पेश करने की तकरीब कमांड अस्पताल उधमपुर में मुनक्किद हुई। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड ने शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। चीफ ऑफ स्टाफ नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्रा और GOC 71 सब एरिया मेजर जनरल हरतेज सिंह ने भी शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद शहीद के जसद खाकी को उनके आबाई गांव रवाना कर दिया गया। G20 समिट के पेश नजर पठानकोट से जम्मू तक नेशनल हाईवे पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने हाईवे पर रुकावटें खड़ी कर दी हैं और हर गाड़ी को रोककर सख्त तलाशी ली जा रही है, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कौमी शाहराह पर CCTV के जरिए कड़ी निगरानी की जा रही है। हम इस समय मौजूद है जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे और जिस तरह G20 सम्मेलन जो है वो जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, उसके चलते अगर हम बात करें सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की बात करें, जहां बॉर्डर इलाके की बात करें, सुरक्षा ग्रिड को जो है वो बढ़ा दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में आने वाले सभी वाहनों को जो है वो बड़ी गहनता के साथ चेक किया जा रहा है, चाहे छोटे वाहन हो, बड़े वाहन हो, और सभी का ID कार्ड यहाँ पे चेक किया जा रहा है। और लगातार अगर हम बात करें तो G20 सम्मेलन को लेके जो है वो सुरक्षा कड़ी कर दी है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे सुरक्षा को जहां कड़ा कर दिया गया, वहीं अगर हम बात करें बॉर्डर इलाकों में BSF की तरफ से भी लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और साथ ही साथ SOG की तरफ से भी गश्त जो है वो बढ़ा दी गया। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे में दिन के समय की अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस की तरफ से नाके लगाकर आने जाने वालों की तलाशी जो है वो ली जा रही है और साथ ही साथ रात के समय में भी पुलिस की तरफ से जो है वो गश्त जो है बढ़ा दी गया। इस मौके पे हम मौजूद हैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे और ठीक आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से CCTV कैमरों की मदद से भी जो है वो हाईवे पे जो है वो तलाशी जो है वो की जा रही है। CCTV कैमरे से भी जो है वो हाईवे पे नज़र रखी जा रही है और लगातार अगर हम बात करें सिक्योरिटी को लेके तो G20 सम्मेलन के मद्देनज़र और आगामी अमरनाथ यात्रा के मद्देनज़र जो है वो सुरक्षा को कड़ा कर दिया और लगातार पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे इनपुट्स जो हैं वो मिल रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो है कि बड़े जो एक आतंकी हमले की जो साजिश है वो रची जा रही है। खासकर अगर हम बात करें पठानकोट से लेकर जम्मू तक की तो सुरक्षा को इसी बीच जो है वो कड़ा कर दिया और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार जो है वो चेकिंग जो हाईवे पे की जा रही है और सुरक्षा को कड़ा करते हुए चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। और इसी के चलते खासकर अगर हम बात करें कठुआ बॉर्डर की बात करें, काफ़ी संवेदनशील इलाका है और पाकिस्तान की तरफ से कई दफ़ा नापाक कोशिश जो है वो इस इलाके में करने की कोशिश जो है वो की जा रही है और इसी के चलते अगर हम बात करें सीमांत इलाकों में भी सुरक्षा को कड़ा कर दिया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।
कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। दिफाई तज्जियाकारों ने गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के बयान का खैर मकदम किया है। दिफाई तज्जियाकार रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर ने कहा कि यह बयान पाकिस्तान को अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी की हौसला अफजाई और मदद करने से रोकने के लिए मजीद दबाव डालेगा। न्यूज 18 से गुफ्तगू करते हुए कैप्टन अनिल गौर ने कहा कि अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी की सरगर्मियों को रोकना पाकिस्तान के मफाद में है। has to be stopped और जितना जल्दी इसको करें और एससीओ एक पूरा मैं कहूँगा एकजुट होके इसके खिलाफ खड़ा हो तो ये बंद हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बंद हो सकता, सिर्फ ये है कि हम उसमें फिर अपने स्वार्थ ना ले लें कि चाइना अपना स्वार्थ ले ले। नहीं जी, पाकिस्तान के साथ उसको अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का वो है, इसलिए वो कहे नहीं जी इसको छोड़ दो जी। आज आप देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रोस्क्राइब टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर हैं। वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे? वहाँ पे जलसे करते हैं, वहाँ पे सब कुछ करते हैं, क्यों नहीं पकड़े जा रहे? वो पकड़ना नहीं चाहता क्योंकि उनकी अपनी क्रिएशन है वो। तो इसीलिए जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल सही कहा, और उससे पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी जो कहा उन्होंने भी सही कहा कि ये जो टेररिज्म है ये नहीं चल सकता। तो जिस तरह से आपने कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, तो आपको लगता है कि जब ये स्टेटमेंट आया है उसके बाद से पाकिस्तान पर एक बार फिर एक प्रेशर आएगा कि वो टेररिज्म को बंद करे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद करे और हवाला के जरिए पैसा भेजना बंद करे? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बहुत है आज की डेट में। जिस हिसाब से पाकिस्तान ये बेगिंग बाउल लेके घूम रहा है सब जगह, उसको पैसा क्यों नहीं दे रहे? आपको पता है FATF में भी ग्रे लिस्ट में था और उसके अंदर IMF अभी तक लोन देने को तैयार नहीं है उसको, क्योंकि उनको पता है ये जो पैसा जाएगा ये जो जहां इस्तेमाल होना वहां नहीं होगा, ये साइफन ऑफ हो जाएगा और साइफन ऑफ होकर कहाँ हो जाएगा? ये टेररिस्ट के पास जाएगा। और इस वक्त की एक अहम खबर, शुपिया में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली कामयाबी। बड़ी खबर इस वक्त की, सिक्योरिटी फोर्सेस को शुपिया में कामयाबी मिली है। तुलरन नागेश्वरन में नाका चेकिंग के दौरान हथियार बरामद हुए हैं। मोहम्मद असगर डार नामी शख्स के कब्जे से ये हथियार बरामद हुए हैं। एक पिस्तौल और एक मैगजीन समेत 8 राउंड बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें शुपिया में बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस को हथियार बरामद किए गए हैं। तुलरन नागेश्वरन में नाका चेकिंग के दौरान ये हथियार बरामद किए गए हैं। मोहम्मद असगर डार नामी शख्स के कब्जे से हथियार बरामद किए गए हैं। एक पिस्तौल और एक मैगजीन समेत 8 राउंड बरामद किए गए हैं शोपियां में। मुतल्लिका PS में FIR दर्ज कर दी गई है। तो बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को शोपियां में मिली है। हथियार बरामद किए गए हैं। तुलरन नागेश्वरन में नाका चेकिंग के दौरान हथियार बरामद किए गए हैं। असगर अहमद डार नामी शख्स के कब्जे से यह हथियार बरामद किए गए हैं। नाका लगाया गया था जहां पर एक पिस्तौल, एक मैगजीन समेत 8 राउंड बरामद कर लिए गए हैं। तो शोपियां में बड़ी खबर। और आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से दहशतगर्दों ने आम शहरियों को निशाना बनाया। हथियार बरदार अफराद ने स्कूल में घुसकर शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाले 8 असातिज़ा को निशाना बनाकर हलाक किया। इस हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सैयद हसन ने एहतजाज किया। मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में नमाज जुमा के दौरान आगा हसन ने कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह से शिया आबादी पर दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं, ये पाकिस्तान के इन दावों के खिलाफ है जहां वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में किसी भी मजहब पर कोई रोकथाम नहीं है। आगा हसन ने कहा कि माजी में भी पाकिस्तान में इस तरह से शिया अफराद को निशाना बनाया गया और हुकूमत कोई ठोस इकदाम नहीं करती है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान पर जोर देते हुए कहा कि इस तरह के हमले रोके जाएं और तहकीक की जाए। कल पाराचनार खून की होली खेली गई, इससे पूरे आलम इंसानियत गमज़दा है, दुखी है। उनका ये हज़ारा बरादरी का ये मुकद्दर ही बना है। इससे पहले भी उन पर इस तरह के हमले होते रहे हैं। यकीन दहानियों के बावजूद और कमेटी बनाने के बावजूद आज तक
उनको कोई भी इंसाफ नहीं मिला है। मैं आपके वसातत से अपना ये एहतजाज बुलंद करना चाहता हूँ। आज इस वाक़े पर गैर जानिबदार तहकीकात तो होना चाहिए और जो भी इसमें मुलव्वस पाया जाए उसको इबरतनाक सजा देने में कोई तामुल नहीं होना चाहिए। ये ममलकती पदादादी पाकिस्तान के नजरे के खिलाफ है, जिसमें यही बयान किया गया था हर एक को इंसाफ मिलेगा, हर कोई अपने अकायद के हिसाब से इबादत करेंगे। मगर इस तरह का हाल ही में कल जो हुआ है इसको मैं पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ। उन्हीं के जिस तरह उन्होंने इस सिलसिले में बयान दिया है और इस सिलसिले में यकीन दहानियां की है, वो उस यकीन दहानी को अमली शक्ल दे ताकि सरजमीन पाकिस्तान दहशत गर्दों से पाक और साफ हो। दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं है, न इससे कोई मजहब तस्लीम करता है। आसमानी किताब भी यही कहती है, जिसने एक नाहक कत्ल किया वो इतना जुर्म है, वो इतना संगीन जुर्म है, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। शिया एसोसिएशन के सदर व पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी ने पाकिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दों की तरफ से शिया मसलक के शहरियों पर निशाना बनाने पर पाकिस्तान को नाकाम मुल्क करार दिया। उन्होंने कहा कि हर रोज और हर जुमे शिया मसलक के शहरियों को कत्ल किया जा रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए अफसोसनाक है। इमरान रजा अंसारी ने हिंदुस्तान और पूरी दुनिया और खासकर अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि वो संगीन मसले को देखें। इमरान अंसारी ने पटन में मीडिया से बातचीत के दौरान इन बातों का इजहार किया। मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान एक फेल स्टेट है और उनसे जो ये उनसुर हैं जो ये काम कर रहे हैं, अब ये आप पहली बार ही नहीं है। अगर आप देखेंगे कि हर जुमे को तकरीबन हर जुमे को या तो कहीं वो मस्जिद में ब्लास्ट करते हैं या निहत्तों को मारते हैं, या जो लोग जियारतों के लिए इराक या ईरान जाना चाहते हैं उनको मारते हैं। ये एक तकफीरी एलिमेंट जो पाकिस्तान को खा रहा है। मुझे लगता है कि ये सवाल एक पेचीदा है, लेकिन इसको मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बस में अब ये नहीं रहा है कि इन चीज़ों को रोक ले। मुझे लगता है कि हमारी एक अपील, यूनाइटेड अपील हमारे इस मुल्क से भी, भारत से भी और बाकी ममालिकत से भी, ये एक अपील जानी चाहिए यूनाइटेड नेशंस को, ताकि वो देख लें कि इसके पीछे कौन से उनसुर हैं और बेगुनाहों को क्यों शहीद किया जा रहा है। शिया बरादरी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों कश्मीरी नौजवानों ने आलमगीरी बाजार जडबल श्रीनगर में पाकिस्तान में शियों के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने पाकिस्तान में शियों के कत्ल की मजम्मत की। एहतजाजों ने इसे पाकिस्तान में शिया बरादरी की नस्लकुशी करार दिया। उनका कहना है कि पाकिस्तान अपनी मजहबी और नस्ली अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहा है। उन्होंने बेगुनाहों के कत्लेआम और हलाक होने वाले खानदानों के साथ इजहार यकजहती की। यहाँ पे इस चीज़ के लिए जमा हुए हैं, हमारी आंखें कल से तर हैं, जबकि हमने वो न्यूज़ सुनी पारा चिनार पाकिस्तान में जो कल उन टीचर्स के साथ जो कातलाना हमला, जिसमें वो 7-8 टीचर्स उनका जो सराय राम कत्ल किया गया, हम उस चीज़ के खिलाफ यहाँ पे जमा हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये जो टीचर्स एक सरमाया होते हैं किसी भी कौम का, चाहे वो कोई भी माइनॉरिटी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी फिरका हो, वो उस चीज़ के जो टीचर्स वो सरमाया होते हैं, उसी से शऊर मिल जाता है आवाम को। यहाँ से उनके खिलाफ आज खड़े हुए हैं। हम इस चीज़ का यहाँ से पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। टीचर्स का कत्ल हुआ है बेरहमी से, उनके खिलाफ हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिसने भी ये किया वो किसी मज़हब व मिल्लत से नहीं है, क्योंकि वो एक इंसानियत का खून बहा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब टीचर्स का कत्ल हुआ, जो एक कौम का सरमाया होता है। यहाँ पे बात करना चाहते हैं इंसानियत के लिए। वो जो
इंसानियत के खिलाफ जो कत्ल कल हो गया है, वो सिर्फ इंसानियत के खिलाफ नहीं बल्कि आर टीचर्स, द पीपल कांट इमेजिन द 8 टीचर्स जो मुस्तकबिल है एक कौम के। अगर एक टीचर होता है वो खुद तो टीचर ही रहता है, मगर अगर एक इंसान को एक साइंटिस्ट बनाता है, एक इंजीनियर बनाता है, एक पीएचडी स्कॉलर बनाता है, एक मुअल्लिम बनाता है। कुपवाड़ा में एसआईए की जानिब से छापेमारी की गई है। टेरर फंडिंग के मामले में करना तहसील में एलओसी के करीब परदाताड़ा गांव में छापा मारा है। और बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के लिए कश्मीर वापसी के अलावा मशहूर सितारे यूरोपीय ममालिक जाने के बजाय अब छुट्टियों के लिए कश्मीर का इंतखाब कर रहे हैं। बॉलीवुड की नामवर अदाकारा सारा अली खान आजकल वादी कश्मीर में छुट्टियां गुजार रही हैं। उन्होंने अपनी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जिनमें कश्मीर की खूबसूरती को दिखाया गया है। सारा ने अपनी वालिदा अमृता सिंह और दीगर खानदानी दोस्तों के साथ ये तस्वीर मौसम सरमा के मशहूर सेहती मकाम गुलमर्ग में ली हैं। इसे वादी कश्मीर में सेहत की बहाली के लिए एक बड़ी तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। इस साल भी तवक्को है कि रिकॉर्ड तादाद में सयाह वादी का रुख करेंगे और लगभग 2 करोड़ लोगों की वादी आमद की उम्मीदें हैं। ताज़ा आदादशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 4 महीनों में 6 लाख से ज्यादा लोग सैर तफरी के लिए कश्मीर पहुंचे। पिछले साल 1 करोड़ 88 लाख सयाहों ने वादी का रुख किया था। कहा जा रहा है कि G20 इजलास के सबब गैर मुल्की सयाहों की जम्मू कश्मीर आमद में इजाफा होगा। पुंछ जिले को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन मुसलसल खराब मौसम और पुंछ जिले के बालाई इलाकों में वक्फे से होने वाली बर्फबारी की वजह से आइंदा 5 से 6 दिनों तक मुगल रोड पर ट्रैफिक बहाल होने का कोई इम्कान नहीं है। ताहम पुंछ जिलाई इंतजामिया मुगल रोड पर ट्रैफिक को जल्द बहाल करने की कोशिश कर रही है। सतह समंदर से करीब 13,000 फुट की बुलंदी पर वाक़े मर्गन टॉप को बहाल कर दिया गया है। भारी बर्फबारी की वजह से 5 महीनों तक बंद रहने के बाद मुसाफिरों, ट्रैफिक और छोटी माल बरदार गाड़ियों को एहतियात से चलने की इजाजत दी गई है। इस सड़क राब्ते के बंद होने से मारवा और वाड़वन के 4 दर्जन से ज्यादा इलाके बाकी दुनिया से मुकम्मल तौर से मुनक़ता हो जाते हैं और पूरे सब डिवीजन में राशन, अशिया खुर्द नोश, जरूरी सामान और अद्वियात की कमी पैदा हो जाती है। न्यूज़ 18 की टीम ने मरवा और वाड़वन की आवाम को दरपेश मुश्किलात जानने की कोशिश की। सब डिवीजन मरवा और वाड़वन की 50,000 की आबादी को करीबी शहर अनंतनाग से जोड़ने का ये वाहिद रास्ता है। जिला इंतजामिया किश्तवाड़ की तरफ से बर्फबारी के दौरान इमरजेंसी मामलात के लिए हेलीकॉप्टर की खदमात फराहम की जाती हैं। PMGSY डिवीजन मरवा के असिस्टेंट इंजीनियर उमर हारिस ने न्यूज़ 18 को बताया कि गुज़श्ता साल दिसंबर के पहले हफ्ते में मुर्गन टॉप बर्फबारी की वजह से बंद हो गया था और इसे 12 अप्रैल को बहाल किया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद ताज़ा बर्फबारी की वजह से यह सड़क 17 अप्रैल को दोबारा बंद हो गई थी। उन्होंने कहा कि मुर्गन टॉप पर 3 फुट से ज्यादा बर्फ को साफ करके ट्रैफिक को निहायत एहतियात से चलने की इजाजत दी गई है। हम अभी लगभग 5-6 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं, जो कि बर्फ बहुत ज़्यादा है यहाँ से। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेगी तो एक दिन का मसला है, ये रोड क्लियर हो जाता है। इवन हमने 10 किलोमीटर जाना पड़ता है और फ़ोन करना पड़ता है। मतलब ऐसी हालात है, सूरत हाल है, अभी खाने के लिए वहाँ पे कुछ ही नहीं। कल से हमने अपना सफ़र शुरू किया है। कल हम मती गावरन तक पहुँच चुके थे, तो आज हम मरगन टॉप पे पहुँच चुके हैं। इस वक्त हम मरगन टॉप पे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी भी ये मरगन टॉप जो है बंद है। यहाँ बहुत बर्फबारी हुई, ताज़ा बर्फबारी हुई है। तो अब हम कुछ किलोमीटर पैदल चलेंगे, क्योंकि हमारी टीम ने अब फैसला ले लिया है कि नहीं, हम ज़रूर वाड़वन पहुँचेंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वाड़वन में भी डिमांड है, इस पूरी वादी की जो डिमांड है वो है टनल।
अगर यहाँ टनल दिया जाए तो जो वड़वन की जो मुश्किलात है वो उसी से दूर हो जाएंगे। जब यहाँ टनल दिया जाएगा तो उससे लोगों को राहत भी मिल सकता है, लोगों को वो फैसिलिटी भी मिल सकती है। हमारा एक ही रास्ता है जुड़ने का, वो है मरगनटाप। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जितना पैसा गवर्नमेंट ने इस मरगनटाप पे सर्व किया है, मुझे लगता है कि अगर इतने सालों से गवर्नमेंट ने एक टनल पे इंटरेस्ट दिया होता, वो टनल आज कंप्लीट हो गई होती। हमें एक फैसिलिटीज भी दिया गवर्नमेंट ने, जो मतलब एयर चॉपर, एयर सर्विस। हमारे यहाँ पे जितने भी पेशेंट होते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे पेशेंट हो या बाकी, अब तो मतलब उनको यहाँ से लिफ्ट किया जाता है। हमने 12 अप्रैल को ये ऑलरेडी रोड ओपन किया हुआ था आफ्टर 3 और 4 मंथ्स ऑफ क्लोजिंग ऑफ द रोड। दिसंबर लास्ट में, ये दिसंबर 2022 में रोड क्लोज हुआ था। तो हमने ये 12 अप्रैल को रोड बहाल किया था। तो 4-5 दिन रोड खुला भी रहा, तो द एसेंशियल स्टॉक्स वर अकोमोडेटेड देयर और देयर। तो उसके बाद लेकिन बदकिस्मती है कि नई बर्फबारी हुई, जो मौसम 4-5 दिन खराब रहा। तो उसके बाद हमें कल ही एक दिन मिला है, उसमें भी 4-5 घंटे ही हमको मिले, क्योंकि अनंतनाग साइड का रोड अभी थोड़ा सा पेंडिंग था। सांबा में जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर कल रात एक सड़क हादसा रूनुमा हुआ। हादसा उस वक्त पेश आया जब कठुआ से जम्मू जा रही कार अचानक सांबा के बसंतर पुल से नीचे गिर गई, जिसके बाद कार में सवार एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को इलाज के लिए सांबा जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी शख्स की शनाख्त योगेश रामपाल वल प्रदीप रामपाल साकिन मेरा साहब जम्मू के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि कार सवार शख्स अपनी कार पर कंट्रोल न कर सका, जिसके सबब वो नदी में गिर गई। इतला मिलते ही सांबा पुलिस मौके पर पहुंची। एक टीम जिला अस्पताल सांबा को भी गई, जहां डॉक्टरों ने जख्मी योगेश रामपाल की हालत संगीन होती देख उसे जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करके इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। ट्रेडर्स फेडरेशन ने जम्मू में वाक़ अपने सदर दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। तंजीम के सदर दीपक गुप्ता ने मीडिया से बातचीत की। उनका कहना था कि जम्मू के ताजरों ने टैक्स की शक्ल में करोड़ों रुपए अदा किए हैं और वो ईमानदारी के साथ साथ पूरे जोश और खरोश के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इल्जाम लगाया कि जीएसटी डिपार्टमेंट ताजरों को हिरासत कर रहा है। महकमे वालों की तरफ से की गई क्लरिकल गलतियों का खमियाजा ताजरों को भुगतना पड़ रहा है। ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर ने जोर दिया कि जीएसटी महकमे को अपने वज़ा करदा कवायद व ज़वाबित का लिहाज करते हुए खुश उसलूबी से काम करना चाहिए। तरफ देखो, हमारी लाखों गाड़ियां जो है, हजारों गाड़ियां जो है रोजाना जा रही हैं। कई बार रास्ते बंद हो जाते हैं और उससे हमारी गाड़ी जो है टाइम से नहीं पहुंच पाती और ई वे बिल जो है एक्सपायर हो जाता है। लेकिन हमने टैक्स जमा करवाया हुआ है और क्लरिकल मिस्टेक के कारण जो है लाखों रुपए की पेनल्टी लग रही है। ये जीएसटी डिपार्टमेंट को हालात जो है समझने चाहिए, व्यापारियों का दुख जो है समझना चाहिए। इस साल जो है 7,000 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ है, ये हम लोगों ने जमा करवाया है। हमारे व्यापारी जो है ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करके दे रहे हैं। भैया को जो है ठीक किया जाए, नहीं तो व्यापारी जो है अपने दुकानें बंद करके जो है हम लगातार प्रदर्शन करेंगे। अगर हमें बंद करना पड़ेगा हम बंद भी करेंगे। कश्मीरी पंडितों की तरफ से जम्मू में शंभू मंदिर में सामूहिक वार्षिक यज्ञ का एहतमाम किया गया। गणेश चतुर्थी के मौके पर सामूहिक यज्ञ शुरू होता है और पूर्ण आहुति वैशाख पूर्णिमा पर किया जाता है। आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर तकरीबात का इनेकाद किया गया और रात भर भजन मंडली के साथ व्याद का वर्द किया गया। इस मौके पर मुल्क व कौम की सलामती खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। बाद में अकीदतमंदों के दरमियान आहुति प्रसाद भी पेश किया गया। आप शंभू में जगत कल्याण के लिए आज जो पर्व शाम को बैठे थे आज, और आज पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसकी पूर्ण आहुति होगी। लेकिन आज सिर्फ इतना आज सारा संसार अशांति में जल रहा है और आज के लिए जो हमने यज्ञ किया है बस संसार में ऐसे आनंद मानवता फिर वापस आए और संसार में सुख और शांति प्रेम वापस आए, बस यही प्रार्थना आज हमने आप की है। तो ये हवन विश्व शांति के लिए, हमारी घर वापसी के लिए और समस्त जीव जंतु में, समस्त पृथ्वी में शांति हो, इसके लिए किया जाता है। और सबको सुख मिले, सब सुख समृद्ध हों, सबकी घरों में समृद्धि आए और सबसे बड़ी बात कि हम लोग जो
विस्थापित हैं पुनः अपने अपने जगहों पे स्थापित होकर अपने मन को तसल्ली दें। बस यही इस हवन का उद्देश्य है। ये महायज्ञ जो है ये हर साल की तरह इस बार भी बढ़ चढ़ के कश्मीरी सभी समुदाय के लोगों ने यहाँ हाजिरी दी, मत्था टेका और आप शंभू से आशीर्वाद मांगा पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान के अमन और शांति के। ये कामना करते कि अपनी मातृभूमि में जाएंगे, बड़ी याद आती है उसकी, बड़ी याद आती है अपने कश्मीर की। हम जाना चाहते हैं वहाँ, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया है, अब हम जाना चाहते हैं वहाँ। श्री महागणेश जी चैरिटेबल फाउंडेशन ने गणेश चतुर्दशी के मौके पर सालाना वार्षिक हवन का एहतमाम किया। हवन 4 तारीख को शुरू हुआ, जिसे गणेश चतुर्दशी के तौर पर मनाया जा रहा है। आज वेदा पूर्णिमासी पर पूर्ण आहुति अदा की गई। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने हवन में शिरकत की। बाद में अकीदतमंदों के दरमियान प्रसाद पेश किया गया। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मेंढर सब डिवीजन में बेवा खवातीन को रोजगार फराहम करने के लिए भारतीय फौज ने इकदाम उठाया है। बेवा खवातीन के लिए नारी निकेतन में एक इमारत तामीर की गई, जिसमें कुम्मियों की काश्त का प्लांट लगाया गया है, जिसकी देखभाल महकमा ज़राअत कर रहा था। जबकि इस मशरूम कल्टीवेशन प्लांट के शुरुआत पर वहां कुंभियां लगाई गई थी, जिसकी पहली फसल आज महकमे के मुलाजमीन समेत खवातीन ने दस्तयाब कराई हैं। करना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ नारी निकेतन में एक मशरूम शेड का स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद नारी निकेतन वालों ने एग्रीकल्चर वालों से थोड़ा रब्ता किया कि हमारे पास आर्मी वालों ने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसको कैसे सक्सेसफुल करना है। तो हमने डायरेक्टर साहब से और अपने चीफ साहब से गुजारिश की कि हमारा यहाँ एक शेड बनाया, उसमें मशरूम कल्टीवेशन क्रॉप लगानी है। तो डायरेक्टर साहब की क़यादत में, चीफ साहब की मेहनत से ये हमने इनको मशरूम बैग जम्मू से मंगा के दिए रेडीमेड। तो आज ये जो ऑफ सीज़न मशरूम है, सर्दियों में तो लगता है ये ऑफ सीज़न मशरूम है, फर्स्ट पिकिंग यहाँ हमने करनी की है। तो इसमें नारी निकेतन वाला जो स्टाफ था इन्होंने भी मेहनत की है, सोशल वेलफेयर वाले हैं इन्होंने भी मेहनत की है। तो आज हम एक फ्रूटफुल रिजल्ट पे पहुंचे हैं। आज हमारी फर्स्ट पिकिंग हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंडियन आर्मी का बड़ा सहयोग रहा, जिन्होंने हमें जो बिल्डिंग वगैरह प्रोवाइड की, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडियन आर्मी की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया। बाकी इसके बाद जो है हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इसकी बहुत हेल्प रही। हमें जितना भी मटेरियल था, जैसे कि मशरूम के लिए वो मशरूम के सीड्स आ गए, बाकी खाद वगैरह आ गया, वो हमें एग्रीकल्चर की तरफ से भी प्रोवाइड की गई। और मशरूम में इसमें एक एटलीस्ट 2 महीने का टाइम लगा, जो अब मशरूम बड़ा फुल्ली जो तैयार हो गया है इन कोलैबोरेशन, यानी कि इसमें हमारा 3 डिपार्टमेंट मिलके, इंडियन आर्मी हो गई, एग्रीकल्चर हो गई और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मिलके बड़ी मेहनत की इसमें। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर और आर्मी, इंडियन आर्मी की तरफ से ये मिल के एक कोलैबोरेशन, मतलब सब के ने मिलजुल कर ये नारी निकेतन में ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और इसमें हमने ये मशरूम कल्टीवेशन, ये बच्चों को यहाँ जो नारी निकेतन में बच्चे होते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम यहाँ किया। और ये हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहब की डायरेक्शन पर और चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर पुंछ राकेश शर्मा जी की डायरेक्शन पर ये हमने यहाँ लगाए थे। लगभग 200 बैग यहाँ हमने मशरूम कंपोजिट बैग लगाए और आज उनकी पिकिंग हुई है। और बड़ी बम्पर क्रॉप हमें लगभग 25-30 किलो वो मशरूम हमें फ्लश मिला है। द्रास के ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन नूर मोहम्मद ने अवाम को राशन कार्ड जारी न करने पर करगिल इंतजामिया पर बरहमी जाहिर की। इस जमीन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नूर मोहम्मद द्रास इलाके के नौजवान BDC हैं। उन्होंने शिकायत की कि पिछले 5 सालों से कोई भी नया कार्ड जारी नहीं किया गया और मुतल्लिका महकमा सोया हुआ है, जिसके नतीजे में आवाम को मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। राशन कार्ड इंतहाई अहम दस्तावेज बन गया है, लेकिन वो कुछ बासर लोगों को ही दिया जा रहा है। BDC ने इंतजामिया से गुजारिश की कि वो फौरी कार्रवाई यकीनी बनाए। कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि यहाँ पर जो है राशन कार्ड पिछले 4 साल से नहीं बने हैं, तो इसमें एक इशू आ रहा है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कारगिल में है, यहाँ पर जो है बहुत सारा जो हमारा राशन कार्ड का जो सिस्टम है वो हर जगह में लगता है, चाहे वो बिजली का एग्रीमेंट करना हो या हमारे नरेगा का जॉब कार्ड हो, और बहुत सारी जगहों में जो है राशन कार्ड बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो है हमारी पब्लिक में कुछ ऐसे बिलो रेंज के लोग हैं जो PHH हो या BPL हो, AY हो, इन कैटेगरीज के लोगों को राशन का भी काफ़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें जो है बिलखुसूस डिपार्टमेंट फूड एंड सप्लाई जो है एक हमारे साथ पिछले 4 सालों से खेल रहा है, जिसके वजह से हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। तो हम डिपार्टमेंट को आगाह करना चाहते हैं कि इन्होंने पिछले
पिछले कहीं 1-2 साल से जो है एक जो है ई टिकट के जरिए राशन कार्ड देना शुरू किया है, जो कि एक जो है वो कुछ लोगों को जिनका सोर्स है, जिनका एक जो है पिट है, जिनको एक सपोर्ट है, उन लोगों को जो है ई टिकट के जरिए राशन दिया जा रहा है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।